فرمائے گا, آخرت میں آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا. آپ کو میں بتا دوں کہ آپ ایک باپ ہیں, آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اے کاش ہم بھی ہوتے تو ایمان کے ساتھ قتل ہو جاتے. آپ کے بال بچے ہیں, کہتے جس طرح علی اصغر قربان ہوئے ہیں, اگر ہم بھی ہوتے تو اپنے بچوں کو لے جا کر ایمان کے قدموں پر ڈال دیتے اور کہتے تھے حضور یہ بھی آپ کا صدقہ ہے جو آپ کے قدموں پر اتارا جا رہا ہے, ہم بھی قربان ہو جاتے, بال بچوں کو بھی امام حسین کے نام پر قربان کر دیتے. ایسی تمنا یہ بخشش کی ضمانت ہے. دیکھو آج خراسان ایک شہر ہے, خراسان کا ایک بادشاہ تھا جسے امر لیث کہتے ہیں. امر لیث بادشاہ تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب اسے کوئی 1000 کا لشکر بنا کر کے دیتا تھا تو بادشاہ اسے سونے کا ایک گرز دیتا تھا. کوئی بھی 1000 کا لشکر بنا کر دے تو تحفے میں 1000 کا کے بدلے ایک گرز دیتا تھا. یہاں تک کہ لوگ لشکر بنا کے امر لیث کو دیتے رہے اور یہ سونے کا گرز بانٹتا رہا. ایک دن کھڑے سوچتا رہا تو 100 لوگوں نے 1000 کا لشکر بنا کر کے دیا اور یہ 100 لوگوں کو گرز دیا. اچانک ایک گھوڑے پر سوار ہوتا اور رونے لگا, زمین پر گرا, خاک اڑانے لگا, بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو درباریوں نے کہا اے بادشاہ سلامت, اچانک آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ تو گھوڑے پر سوار تھے, زمین پر گر کر کے رونے دھونے کیوں لگے؟ تو عمرو بن لیث جو خراسان کے بادشاہ تھے انہوں نے کہا اے لوگوں, جب میں نے اپنی فوج کا حساب لگایا تو میں نے سمجھا کہ 1,00,000 فوج کا مالک ہوں میں. جیسے ہی میں نے دیکھا کہ 1,00,000 فوج میری پاس ہے تو فوراً مجھے کربلا یاد آ گیا, فوراً کربلا یاد آ گیا. اور میں نے اپنے دل میں کہا اے کاش میں اس وقت ہوتا جب امام علی مقام کربلا کے میدان میں صبر و رضا کی راہوں سے گزر رہے تھے, تو اے کاش اگر میں اس وقت ہوتا تو 1,00,000 کا یہ لشکر امام علی مقام کی خدمت میں پیش کر کے اپنی زندگی کا نذرانہ امام کے قدموں پر پیش کر دیتا تو میری زندگی کی معراج ہو جاتی. امام حسین کی محبت اور ان کی مصیبت یاد آ گئی جس کی وجہ سے رونا آ گیا, جس کی وجہ سے میں مدہوش ہو گیا کہ یہ بات ہونی تھی ہو گئی. دیکھو کربلا گئے نہیں, کربلا میں جانے کی تمنا کیا تھا خراسان کے بادشاہ نے. کچھ دنوں کے بعد یہی بادشاہ خراسان عمرو بن لیث کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال کے بعد ایک بہت بڑے بزرگ نے دیکھا کہ خراسان کا بادشاہ عمرو بن لیث یہ جنتی سواری پر سوار ہے, جنتی تاج ہے, جنتی کپڑا ہے, جنت کے محلوں میں ٹہل رہا ہے, جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے. تو اس بزرگ نے پوچھا اے عمرو بن لیث, کون سی نیکی کام آ گئی جو تم جنت کی بہاروں میں گھوم رہے ہو, جنتی لباس پہنے ہو, جنتی تاج سر پر لگائے ہو, یہ کس نیکی کا نتیجہ ہے؟ تو خواب ہی کے عالم میں خراسان کا بادشاہ عمرو بن لیث کہتا ہے یہ اسی نیت اور آرزو کا صلہ ہے جو میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کیا تھا کہ اے کاش جس وقت حسین کربلا میں تھے اگر میں ہوتا تو اپنی 1,00,000 فوج کو لے کر کربلا میں جاتا اور امام پاک کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا. یہ صرف اسی نیت کا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور جنت میں میرے رہنے کی جگہ عطا فرما دیا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر خراسان کا بادشاہ صرف امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خراسان کے بادشاہت کو جنت عطا فرما دیتا ہے. جب امام کے قدموں پر قربان ہونے کی نیت کرنے والے کا جنت کے اندر اتنا بلند و بالا مقام ہے تو بتاؤ قاسم تو امام کے قدموں پر قربان ہوئے ہیں, اکبر تو ان کے قدموں پر قربان ہوئے ہیں, حور تو ان کے قدموں پر قربان ہوئے ہیں, عباس تو ان کے قدموں پر اپنے بازوؤں کو کٹائے ہیں. جب ان کے نام پر قربان ہونے کی
जन्नती होंगे, अली अकबर कितने बड़े जन्नती होंगे, असगर व कासिम कितने बड़े जन्नती होंगे, और करबला के वो तमामी शहीद कितने बड़े जन्नती होंगे जिन्होंने अपनी जान को इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान किया है। बस हम तो यही कह सकते हैं, शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। रसूल पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए अहले बैत से सच्ची अकीदत रखो, मोहब्बत रखो, कुरान पढ़ो, अहले बैत के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करो। ये तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया है, नजात का जरिया है। इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ इसलिए नहीं है कि मातम कर लिया जाए, ताज़िया रख लिया जाए, रो लिया जाए, बेशक उनके नाम पर रोना आ जाए, ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई मना नहीं है, लेकिन शहादत दर्श देती है कि रोने धोने के लिए आपने शहादत नहीं पेश किया है, मातम के लिए शहादत नहीं पेश किया है, भया सीना पीटने के लिए नहीं, बाल नोचने के लिए नहीं दिया है, बल्कि शहादत इमाम अली मकाम ने इसलिए करबला के मैदान में दिया है ताकि आए मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, देखो दीन की कश्ती डगमगा रही थी, दीन का निजाम बदलने वाला था, दीन का मामला इधर से उधर हो रहा था, तो मैंने अपने साथ बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया है, दीन को बचा लिया है। इसी तरह क़यामत तक जब जब इस्लाम के लिए, नबी के लिए, हुर्मत दीन के लिए वक्त पड़ जाए तो तुम बीवियों का सुहाग दे देना, बच्चों की जवानी दे देना, घर लुटा देना, सुहाग लुटा देना, अपनी गर्दन कटवा देना, लेकिन दीन इस्लाम पर आँच ना आने देना और दीन के गद्दारों से, दीन के दुश्मनों से बरजस्ता हुसैनी पैगाम पेश करते रहना कि हुसैन को करबला में लेते हैं, लेकिन हुसैन अब भी गलियों में घूम रहे हैं। जालिम तुम क्या समझते हो हम दीन के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं, बीवियों का सुहाग दे सकते हैं, गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन इस्लाम और ईमान की आबरू नहीं दे सकते हैं। जो दीन मांगो तो दी, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर कि हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये है कुर्बानी, ये इमाम हुसैन का असली मकसद। आज ये कौम कहाँ जा रही है, जरा गिरेबान के अंदर मुंह डाल करके सोचे। ऐ मुसलमान, सच्ची अकीदत रखो, पक्की अकीदत रखो, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सच्चा प्यार करो। एक रिवायत बयान करके कि अगर मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह दुनिया हो कब्र हो हर जगह बेड़ा पार हो जाएगा। देखो अगर मोहब्बत अहले बैत का चिराग आपके घर में चल रहा है, आपके दिल में जल रहा है, बाल बच्चे आपके अहले बैत वाले हैं, अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के मैदान में मेरी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस शान से आएगी कि मेरी शहजादी एक ताज लगाए होगी जिसके 70 गोशे होंगे, ऊंटनी पर सवार होगी, 70,000 फरिश्ते दाएं होंगे, 70,000 फरिश्ते बाएं होंगे, और जिस ऊंटनी पर सैयदा सवार होगी उस ऊंटनी की नकेल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थामे होंगे। कहते आगे आगे जिब्राइल होंगे, दाएं बाएं 70,000 फरिश्ते होंगे, नूरानी ताज लगा होगा, ऊंटनी पर सवार होंगी। कहते हम सब क़यामत के मैदान में जमा होंगे। जैसे ही क़यामत के मैदान में हजरत जिब्रील पहुंचने वाले होंगे तो पहले से निदा करेंगे, या अहलल जमे नक्सू रूशकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमतु बिन्त मुहम्मदिन अला सिरात। हजरत जिब्रील ऐलान करेंगे, ए
मैदान महशर में जमा लोग अपने सरों को झुका लो, अपनी आंखों को बंद कर लो, देखते नहीं हो सैयदा फातिमा ज़हरा बिन्त मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुजर होने वाला है। रवायत के अंदर है, नबी फरमाते हैं 70,000 हूरों की झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा पुलसिरात से इस तरह गुजर जाएंगी जैसे बिजलियों का सीना चीर कर, जैसे बादलों का सीना चीर करके बिजलियां गुजर जाती हैं और अर्श इलाही के सामने जाकर के खड़ी हो जाएंगी। आलम यह होगा कि सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा के हाथ में वही खूनी जुब्बा इमाम हुसैन का होगा, खूनी जुब्बा अली अकबर का होगा, कासिम का होगा, अली असगर का होगा। ये कुर्ते लेकर के सैयदा फातिमा ज़हरा अर्श आज़म के पास पहुंचेंगी, हाथों में खूनी जुब्बे हैं, अर्श आज़म के नीचे अल्लाह को सजदा करेगी और कहेगी या हकमल हाकिमीन फहकुम बैनाना व बैना मन क़तल औलादी। अर्श के खंबे के नीचे सजदा रेज़ हो करके सैयदा फातिमा ज़हरा अल्लाह ताला से अर्ज करेगी, ऐ हकमुल हाकिमीन, आज इंसाफ का दिन है, आज मेरे और मेरे शहजादे हुसैन के कातिलों के दरमियान इंसाफ फरमा दे। गैब से आवाज आएगी, ऐ शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा, बेशक ये क़यामत का दिन है, जो इंसाफ का दिन है, जो फैसले का दिन है, आप घबराए नहीं। या हबीबती वैबरता हबीबी, ऐ मेरी प्यारी बंदी, ऐ मेरे नबी की चहेती बेटी, सलीनी मांगो तो तेई तुम्हें दिया जाएगा, वशफी तो शफ़ी शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। हाथों में कुर्ता है, ला युजाविज़ु ज़ुल्मा ज़ालिम, ऐ बंदी आप किसी जालिम को आप छोड़ा नहीं जाएगा। ऐ बंदी बता तुझे क्या चाहिए, ऐ फातिमा मांगो क्या मांगती हो। सजदे से सर उठा करके सैयदा फातिमा ज़हरा कहेंगी, ऐ मौला आज मुझे हुसैन की याद आ रही है, हसन याद आ रहे हैं, कासिम याद आ रहे हैं, अकबर याद आ रहे हैं, अली असगर की याद आ रही है, ज़ैनब याद आ रही है, उम्मे कुलसूम याद आ रही है, मौला मेरी औलादें याद आ रही हैं। अल्लाह ताला के फजल से वो सारे लोग वहां जमा हो जाएंगे, इमाम हसन होंगे, इमाम हुसैन होंगे, करबला के तमाम शहजादे होंगे, इन्हीं के झुरमुट में हुसैन होंगे, लेकिन हुसैन के बदन पर सर नहीं होगा, बगैर सर के इमाम हुसैन खड़े होंगे। जैसे ही सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर इमाम हुसैन पर पड़ेगी और देखेगी कि मेरे बेटे हुसैन के हाथ पांव हैं लेकिन सर गायब है, सैयदा फातिमा ज़हरा धारे मार करके जमीन पर गिर जाएंगी ये सोच करके कि हुसैन वो लोग कहाँ चले गए जिसे नबी गोसा देते थे, वो पेशानी कहाँ गई जिसे नबी चूमा करते थे, वो गाल कहाँ गए जिस पर नबी प्यार फरमाया करते थे। सैयदा फातिमा ज़हरा जब सर नहीं देखेंगी बेहोश होकर के गिर पड़ेंगी, आपको रोता हुआ देख करके हूरों को रोना आ जाएगा। कहते मलाइका बहिश्ती के अंदर खलबली मच जाएगी, तमाम नबी रोने लगेंगे। फिर जब थोड़ी देर के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को होश आएगा, आप सामने खड़ी होंगी तो आपके सामने सैयदना इमाम हुसैन शहीदे करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े होंगे, लेकिन बगैर सर के पहले देखा था। अब जब दोबारा देखेंगी सैयदा फातिमा ज़हरा तो इमाम हुसैन के जिस्म शरीफ पर सर मौजूद होगा। सैयदा फातिमा ज़हरा इमाम हुसैन के पास जाएंगी, अपने सीने से लगाएंगी, पेशानी चूमेंगी, बोसा देंगी, मोहब्बत और अकीदत का इजहार करेंगी, हसन को प्यार करेंगी। उसके बाद अल्लाह ताला से अर्ज करेंगी, मौला हसन तो सामने है, हुसैन तो सामने है, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हसन तो सामने है, हुसैन तो सामने है, अकबर व असगर सामने है, मेरे बेटे सामने है, लेकिन ये मौला बहुत से मुसलमान थे जिनके दिल में मेरे बेटे हुसैन की मोहब्बत
मोहब्बत का चिराग जल रहा था। बहुत से इस मैदान क़यामत में है जिनके दिलों में अहले बैत की नबूवत थी, अहले बैत नबूवत की मोहब्बत थी, मेरे शहजादों का प्यार था। ऐ मालिक, इस वक्त फातिमा को सिर्फ उसकी औलादें प्यारी नहीं है, बल्कि वो तमाम मर्द, तमाम औरतें भी फातिमा को प्यारी हैं। जो फातिमा को प्यार करने वाले थे, हुसैन को प्यार करने वाले थे, हसन को प्यार करने वाले थे, ऐ मौला उन सब का प्यार मेरे अंदर है। ऐ मालिक, उन सब को भी मेरे सामने ला दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल, क़यामत के मैदान में निदा कर दे कि जितने दुनिया में हुसैन के नाम का नारा लगाने वाले थे, अहले बैत के मानने वाले थे, एक तरफ आ जाए। हजरत जिब्राइल क़यामत के मैदान में आवाज लगाएंगे, कहाँ है हुसैनी, कहाँ है हसनी, कहाँ है अहले बैत के चाहने वाले, आए एक तरफ आ जाए। इतना सिद्धा होगा तो जो इमाम हुसैन के चाहने वाले होंगे, अहले बैत के मतवाले होंगे, क़यामत के मैदान से अलग निकलेंगे और जनाब जिब्रील की खिदमत में आएंगे और आज कहेंगे, हुजूर आपने हमें क्यों बुलाया है? फरिश्तों के सरदार जनाब जिब्रील फरमाएंगे, हमने तुमको नहीं बुलाया है, बल्कि कायनात की मखदूमा सैयदा फातिमा ज़हरा ने तुमको याद फरमाया है। बुलाया जाए हुसैनी को, बुलाया जाए अहले बैत के मानने वालों को। गर्ज के वो मजमा अहले बैत का चाहने वाला यहाँ से चलेगा और वहां खड़ा होगा जहाँ इमाम हुसैन खड़े होंगे, इमाम हसन खड़े होंगे, सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद खड़ी होंगी। अब इन सब के हक में, यानी अपनी औलाद और जितने मर्दों औरत फातिमा की औलाद से मोहब्बत करने वाले होंगे, सबके हक में नबी की शहजादी दुआ करेगी और नबी की शहजादी की दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा और उस नबी के बेटी के सदक़े अल्लाह सबको जन्नत का तोहफा अता फरमाएगा। हदीस में है, फतुक़ब्बिदुहुम हत्ता तदखुलहुमुल जन्नह, फतुक़ब्बिदुहुम हत्ता तदखुलहुमुल जन्नह। यहाँ तक कि सैयदा फातिमा ज़हरा इन सारे लोगों को लेकर के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगी। यह अहले बैत की मोहब्बत का सिला होगा, अहले बैत की जानिसारी का सिला होगा। इसलिए मरते दम तक जहाँ भी रहो, जिस माहौल के अंदर रहो, कोशिश यही हो अहले बैत का दामन न छूटा है और न छूटे। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं पर नज़रे पाक की मोहब्बत में हमें आपको, हमारी नस्लों को जिंदा रखे और इन्हीं की मोहब्बत पर हम सबको मौत नसीब फरमाए। खुदा की रहमतें हो। अरे अमीर कारवां तुझ पर फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। इंशाअल्लाह ताला कल करबला की तफसीली वाक़ियात आप हज़रात के सामने जन्नत में आ गया हूँ शबे गम गुजार कर, शबे गम गुजार कर। जन्नत में आ गया हूँ शबे गम गुजार कर, शबे गम गुजार कर। लौटा है अपने घर को वो किस्मत सवार कर, किस्मत सवार कर। और परवाने नजाती में दाएं हाथ में, दाएं हाथ में। और परवाने नजाती, परवाने नजात मिले दाएं हाथ में। इरशाद अहल बैत से इस दर्जा प्यार कर, इस दर्जा प्यार कर। इरशाद अहल बैत। आइए हज़रात, अभी तो मुफ्ती साहब कितना जो दिलाएंगे। अभी देखिए पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह
अभी उसके साथ फरमाने की आज चलने का भी नहीं मिला। इसका मतलब आज 2-3 महीना प्रोग्राम चलेगा और चलना ही चाहिए कि किस साथ तारीफ होती है। मेरे नबी का जो मुझ पर कर्म हो जाए, मेरे नबी का जो मुझ पर कर्म हो जाए, मदीने का सफर एक कदम हो जाए। मेरे नबी का जो मुझ पर कर्म हो जाए, मदीने का सफर एक कदम हो जाए। पाओ हसनैन करीमैन जो आपको लग दे, मेरा छोटा सा मका साबित हो जाए। पाओ हसनैन करीमैन जो आपको लग दे, मेरा छोटा सा मका साबित हो जाए। सुभान अल्लाह। देखिए गौर दीजिए, आप लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये